زمانے میں بہت دور کی سرزمین میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا۔ اس کا 3 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ تیسری بیٹی اگرچہ کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور دوسروں سے زیادہ عقلمند اسے بیوٹے کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف اس کی بہنیں تھیں حسد اور مطلب پرست۔ وہ ان کے والد کا پیسہ خرچ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ بیوٹے ایک شہزادہ کے بارے میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ شہزادے سے شادی کر کے ایک محل میں رہے گی، اس کے ساتھ خوبصورت وقت گزارے گی۔ بیوٹے کی زندگی میں سب کچھ خوش تھا، اس کے خوابوں کی طرح، اور ایک دن اس کی قسمت بدل گئی۔ ایک خوفناک طوفان کی وجہ سے اس کے والد ہر چیز کھو بیٹھے، تمام جہاز اور اسی طرح سارا پیسہ کھو بیٹھے۔ سوداگر کہتا ہے، ہم اب دولت مند نہیں ہیں۔ بیوٹائی نے جواب دیا، ابا آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے، آپ میری واحد دولت ہیں، میں آپ سے خوش ہوں۔ سوداگر غربت کی وجہ سے جلد ہی سارے نوکر گھر سے نکل گئے۔ گھر کو بیوٹائی چلا رہی تھی، جبکہ دونوں بہنیں شکایت کرتی رہیں کہ وہ کس طرح غربت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ وہ اپنے والد کے چہرے پر خوشیاں واپس لے آئے، اور ایک دن تاجر کو خبر ملی کہ اس کا ایک جہاز بندرگاہ میں جا رہا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میرے پاس اچھی خبر ہے، میرے بحری جہازوں میں سے ایک جہاز بندرگاہ میں چلا گیا ہے، ہم مزید غریب نہیں رہیں گے، ابھی مجھے بندرگاہ کے لیے روانہ ہونا ہے، مجھے بتائیں کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے کیا لے کر آؤں؟ بیٹیاں کہتی ہیں، مجھے نئے کپڑے چاہیے، مجھے زیورات چاہیے۔ سوداگر نے خوبصورتی سے پوچھا، اور میرے پیارے بچے میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ خوبصورتی جواب دیتی ہے کہ میں صرف آپ کی محفوظ گھر واپسی چاہتی ہوں۔ سوداگر نے پھر پوچھا، تم بہت پیاری ہو، لیکن تم جو چاہو مانگو میرے بچے۔ خوبصورتی کہتی ہے، سرخ رنگ کا گلاب برائے مہربانی مجھے صرف ایک لے دو۔ سوداگر کہتا ہے، یقیناً میرا پیارا بچہ، اور وہ بندرگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بندرگاہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جہاز بالکل الگ تھلگ تھا، اور اس سے پتہ چلا کہ تمام عملہ جہاز کے باقی سامان کے ساتھ بھاگ گیا۔ تاجروں نے دل شکستہ ہو کر اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سوداگر سڑک سے بھٹک گیا اور گم ہو گیا۔ گھنے جنگل میں برف گر رہی تھی، جیسے سارے سمندر کا پانی برف میں تبدیل ہو گیا ہو۔ گھنی برف میں گھوڑا چلنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے دور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے دیا کہ اسے کچھ روشنیاں نظر آئیں، اور وہ اس طرف چلا گیا۔ ایک بہت بڑا خوبصورت محل۔ جب اس کے پاس پہنچا تو چمکتا ہوا سونے کا بنا ہوا دروازہ کھلا۔ بڑا عجیب سا لگا کہ سنتری کے درختوں کی راہ میں کوئی برف نہیں گری۔ ہائے، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، مجھے محل میں داخل ہو کر بادشاہ سے ملنا چاہیے۔ سوداگر کہتا ہے، ہیلو کوئی ہے محل میں، ہیلو۔ کھانے کی میز تھی جس میں کیک اور پھلوں کا تازہ کھانا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بعد میں خود کھانا شروع کر دینا چاہیے، میں اس قابل میزبان کا شکریہ ادا کروں گا جو بھی ہو۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اس نے اپنا کھانا ختم کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ وہ اوپر گیا، اس نے پہلا دروازہ کھولا اور ایک کمرہ دیکھا جس میں ایک صاف ستھرا بستر تھا۔ اس نے کہا، آوا میرے خدا، ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اچھی قسمت کی وجہ سے تھا۔ سوداگر نے ایک روشن نئے دن میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نے اپنے لیے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا تیار پایا۔ وہ خود کو تیار کر کے نیچے ہال میں چلا گیا۔ میز پر ناشتہ تیار تھا، دودھ کے تازہ جوس اور روٹیاں۔ وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اٹھتا ہے۔ وہ ہیلو، کیا یہاں کوئی ہے؟ آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کا شکریہ، آپ بہت سخی ہیں، میں اب جا رہا ہوں، الوداع۔ باہر نکلتے ہی اس نے اتنے ہی گلاب دیکھے جتنے آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ او، سرخ رنگ کا گلاب، ٹھیک ہے، میں اسے اپنی خوبصورتی کے لیے لے سکتا ہوں۔ وہ فوراً باغ کے قریب پہنچا اور جیسے ہی اس نے ایک گلاب نکالا، اس کے پیچھے ایک زوردار گرجنے کی آواز آئی۔ جب وہ مڑتا ہے تو سامنے ایک لمبا عفریت خون سے سرخ، آنکھیں دانت اور پنجے چھری کی طرح تیز تھے کھڑا تھا۔ کس نے تم سے کہا تھا کہ میرے گلاب جمع کرو؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ میں نے پناہ دی تم کو محل میں؟ تم اس طرح تیرا شکر ادا کرتے ہو، تیری گستاخی کی سزا ملے گی۔ تاجر اسے جواب دیتا ہے، مجھے بخشنے والے،
मेहरबान आका, मैंने सोचा कि वो सखी आका जिसने मुझे ज़रूरत के वक्त खाना और रहाइश दी, कोई एतराज़ नहीं करेगा। अगर मैंने अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक गुलाब लिया है तो मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। मॉन्स्टर कहता है, अच्छा मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, तो वो आपकी जान बचा सकता है। वो क्या है? सौदागर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी 3 बेटियां अभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। इफरीत कहता है, हमम 3 बेटियां, ठीक है, अपनी एक बेटी को इस महल में ले आओ, मैं इसे रख लूंगा और बदले में तुम्हें आज़ादी दी जाएगी। ताजिर जवाब देता है, मैं वादा करता हूँ, मुझे यकीन है कि इनमें से एक ज़रूर आपके पास आएगी। मॉन्स्टर कहता है, बहुत अच्छा, मैं आपको अपने तेज़ तरीन घोड़ों में से एक दूंगा और मैं आपको 1 महीना दूंगा। अपनी बेटी को लेकर वापस आओ, अगर वो आए तो उसे अपनी मर्जी से आना चाहिए, किसी और शर्त पर मैं उसे नहीं रखूंगा। अगर तुम 1 महीने के बाद ना आए तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अगरचा मर्चेंट ने इब्तदा में अपनी जान बचाने के लिए ये तजवीज़ कबूल कर ली थी, लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि इसकी बेटियों में से किसी को आने पर आमादा किया जाएगा। गरीब सौदागर जिंदा से ज़्यादा मर्दा वापस चला गया। घोड़ा तेजी से सवार हुआ और पहुंच गया। कुछ ही देर में उसकी बेटियां उससे मिलने पहुंचे। खूबसूरती कहती है, ओ डीडी मुझे मेरा गिफ्ट दो। मेरा गिफ्ट कहाँ है डीडी? डीडी आप कैसे हैं? आप थक गए होंगे। मर्चेंट कहता है, ये है जो आपने मुझसे आपके लिए लाने को कहा था और आपको नहीं मालूम कि उसकी कीमत क्या है। अपने जहाज़ों और हैवानों के बारे में सौदागर की बेटियां खूबसूरती से कहती हैं, ये तुम्हारी गलती थी, तुम इससे फूल लाने को क्यों कहा? हाँ, अगर तुमने कोई समझदार चीज़ मांगी होती तो ऐसा कभी ना होता। खूबसूरती कहती है, ये बदकिस्मती मैंने ही पैदा की है, इसलिए मैं अपना वादा निभाने के लिए बाप के साथ वापस जाऊंगी। सौदागर कहता है, ए हुसन मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए ये सारा बड़ा इंजाम लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने किया है, ये ठीक है कि मुझे उसका खमियाजा भगतना पड़यास फैसला का। उसने हौसला दिया और अपने वालिद को खुश किया। मर्चेंट कहता है, घर वापस जाओ खूबसूरती, अपनी जिंदगी को खराब ना करो। मेरे पास उस सूरत हाल का मुकाबला करने की हिम्मत है। जब वो रात बातें कर रहे थे तो उनको शदीद हैरत हुई। सारा जंगल पूरी कायनात की तरह रोशन था, उसका इस्तकबाल कर रहा था। ये हैरत अंगेज है। जल्द ही वो नारंगी दरख्तों की सड़क पर पहुंचे और देखा कि किला बहुत रोशन था। जब वो अजीम हाल में पहुंचे तो उन्हें एक शानदार आग जलती हुई नजर आई और दस्तरख्वान एक लजीज खाने से भरा हुआ था। वो तवील सफर के बाद बहुत भौके थे। चनांचा दोनों ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी खाना खत्म किया ही था कि दरिंदे के कदमों की आवाज करीब आती हुई सुनाई दी। डीडी इवनिंग ब्यूटी, गडीड इवनिंग मेजेस्टी, खूबसूरती ने जवाब दिया। मॉन्स्टर कहता है, तो क्या आप आए हैं अपनी मर्जी से? हाँ, खूबसूरती ने जवाब दिया। क्या आप यहाँ रहेंगी जब आपके वालिद चले जाएंगे? हाँ, खूबसूरती ने जवाब दिया। राक्षस सौदागर से कहता है, अपने घोड़े के पास वापस जाओ, तुम्हें एक और घोड़ा मिलेगा जो सोने से भरा हुआ है, जो तुम्हारे और तुम्हारी बाकी बेटियों के लिए है। सौदागर खूबसूरती की तरफ देखता है और कहता है, उलविदा खूबसूरती, मैं तुम्हें हर रोज याद करूंगा। घोड़ा उड़ा और एक ही लम्हे में फासले पर गायब हो गया। मॉन्स्टर खूबसूरती से कहता है, ऊपर जाओ, थोड़ा आराम करो, शब बखेर। खूबसूरती ने पहला दरवाज़ा खोल दिया और एक खूबसूरत सजा हुआ कमरा मिला जिसमें वो बस्तर पर लेट गई और फौरन ही सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर हर वो चीज़ रखी हुई देखी जो वे मुमकिना तौर पर चाहती थी कि उसने अपना लंच अजीम हाल में पाया। दोपहर का खाना खाया और सोफे के कोने में आराम से बैठ गई। क्या ये भयानक दरिंदा मुझे हमेशा के लिए कैद रखेगा? मैं खुद को कैसे आज़ाद करूं
ये सोचते सोचते वो सो गई। शाम का वक्त था। उसने दरंदे को आते हुए सुना, गड एवनंग बेवोटी, गड एवनंग, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हा हा हा, बेखौफ होकर हाँ या नहीं कहो। वह नहीं, क्योंकि तुम नहीं करोगी। गड नाइट ब्यूटी, शब बुखेर। वो उसके इनकार को पाकर बहुत खुश हुई। उसे मुश्ताल नहीं किया था। हर शाम खाने के बाद वो दरंदा उससे मिलने आता और हमेशा शब बखीर कहने से पहले उससे पूछता, खूबसूरती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब वो कहती अवा नहीं, वो बहुत उदास होकर चला गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, खूबसूरती अब हैवान से नहीं डरती थी, क्योंकि वो हमेशा उस पर मेहरबान था। महल में रहना बहुत मज़ा था। वो बाग में खुद को खुश करती थी। वहाँ फुवारे थे, नारंगी के दरख्त, मर्टल के दरख्त और परंदे हती के हैवान भी। कभी कभी खूबसूरती के लिए पियानो बजाता और उसके साथ लंबी लंबी गप्पें लगाता। इस चनांचा सब कुछ देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि आखिरकार खूबसूरती अपने वालिद और बहनों के दीदार की ख्वाहिश करने लगी। उसे बहुत उदास देखकर दरंदे ने उससे पूछा, क्या बात है प्यारी, तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो? ब्यूटी ने जवाब दिया, मैं अपने वालिद से दोबारा मिलना चाहती हूँ। बेराह कर्म, मुझे उसे देखने के लिए सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाने दें। मैं आपके पास वापस आने का वादा करती हूँ। हैवान कहता है, खूबसूरती ये है कि आप मुझसे नफरत करती हैं। आप फिरार होना चाहती हैं। खूबसूरती कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती और मुझ आपको कुछ वक्त के लिए छोड़ने का बहुत अफसोस होना चाहिए। मैं आपसे जो कुछ भी मांगती हूँ आप इनकार नहीं करते। आप बहुत फयाज हैं। हैवान कहता है, अगर तुम अच्छे वक्त पर न आई तो मुझे मर्दा पाओगी। खूबसूरती कहती है, ए अजीज, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा मुझ पर मेहरबान हो। आपको सफर करने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंगूठी पहनकर सो जाओ, डरो कुछ नहीं, सुकून से सो जाओ, और जब तुम बेदार होगे तो अपने बाप को देखोगे। खूबसूरती कहती है, वाकई शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैवान कहता है, और जब आप वापस आना चाहें तो अपनी अंगली से ये अंगूठी निकाल लें और आप अपने आप को दोबारा महल में पाएंगे। हैवान कहता है, गुड नाइट ब्यूटी, मैं आपको बहुत याद करूंगा। ब्यूटी ने जवाब दिया, शब बखेर प्यारे, और आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। हैवान कहता है, बस अपना वादा याद रखो। खूबसूरती कहती है, हाँ हाँ हाँ। जैसे ही हैवान चला गया, खूबसूरती ने सोने की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। उसकी बहनें उसके जादुई रूप पर हैरान रह गईं। बाप ने उसे बहुत मजबूती से गले लगाया और खुशी से रोना शुरू कर दिया। सौदागर कहता है, ऐ खूबसूरती, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। मैंने आपको बहुत याद किया। खूबसूरती कहती है, बाबा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। खूबसूरती ने बहुत गौर व फिक्र के बाद अपने बाप को दरंदे की मेहरबानी के बारे में बताया। उसने जवाब दिया, तुम खुद ही बताओ कि वो हैवान तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी नरमी और मेहरबानी के लिए वो तुम्हारी मोहब्बत का मुस्तहक। यहाँ तक कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि हैवान जमीन पर मर रहा है। ए मेरे खुदा! खूबसूरती इस ख्वाब से उस कदर घबरा गई। इसी शाम उसने अपने बाप और बहनों को अलविदा कह दिया।
बिस्तर पर पड़ते ही उसने अपनी अंगूठी उतारी तो वो फौरन सो गई और सुबह हैवान के महल में जाग गई। वो उस जगह पर पहुंची जहां इसने दरिंदे को मरते देखा था। हैवान अभी भी वहीं था और ज्यादा हरकत नहीं कर रहा था। ओ मेरे खुदा, क्या वो वाकई मर गया है? ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन फिर उसे दोबारा देखकर इसे एहसास हुआ कि वो अभी भी सांस ले रहा है। जल्दी से पानी लाकर इसके चेहरे पर छिड़का और उसको बड़ी खुशी हुई। वो दोबारा जिंदा होने लगा। खूबसूरती कहती है, उआ प्यारे, तुमने मुझे किस तरह डराया। मैं कभी नहीं जानता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जब तक मुझे डर था कि मैंने तुम्हारी जान बचाने में बहुत देर कर दी है। क्या तुम वाकई ऐसी बदसूरत मखलूक से मोहब्बत कर सकती हो? खूबसूरती कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खूबसूरती जानवर से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आपका दिल मेहरबान है और ये इससे ज्यादा है जो मैं जिंदगी में मांग सकता हूँ। जानवर कहता है, खूबसूरती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खूबसूरती जवाब देती है, हाँ। जैसे ही खूबसूरती ने हाँ मैं कहा, हैवान एक अंधी रोशनी में ढक जाता है और फिर हवा में तैरता है और दुलक्ष शहजादे के तौर पर दोबारा नीचे उतरता है। खूबसूरती कहती है कि ए खुदा, तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो। शहजादा कहता है, मैं हमेशा आपका ख्वाब देखता हूँ। मेरी प्यारी खूबसूरती, मुझे एक खौफनाक लांत से निजात दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। एक चड़ील जो मैंने जंग में मारी थी, उसने मरते वक्त मुझ पर बदुआ भेजी। इसने मुझे दुआ दिया कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता और उसने मुझे एक खौफनाक दरिंदे में बदल दिया। लेकिन तुमने अपनी सच्ची मोहब्बत से बुदुआ को तोड़ दिया। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब क्या हो रहा है। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि दरिंदे ने उसे आहिस्ता से चुटकी मारी? ये कोई ख्वाब नहीं है, तुम मेरी हकीकी शहजादी हो, मेरा सच्चा प्यार। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो आपके घर चलते हैं और आपके घर वालों को अपनी शादी के रक़स के लिए तैयार करते हैं। और अगले ही दिन शादी इंतहाई शान और शौकत से मनाई गई। आखिर मेहरबानी खूबसूरती पर मेहरबान होता चली गई। खूबसूरती खूबसूरत चेहरा रखने के बारे में नहीं है, बल्कि खूबसूरत दिमाग और खूबसूरत दिल। और सबसे अहम बात यह है कि खूबसूरती और शहजादा हंसी खुशी रहने लगे।